Hello student. Now we are going to learn chapter 6 from NCERT class 10 life process, and we are learning second video. We are observing, we are watching second video, and second video is about nutrition and type of nutrition. Okay, now see here, nutrition. When we walk or ride on bicycle, we are using एक minute. When we walk or ride on bicycle, we are using up energy. Okay, हम जब भी चलते हैं तो ये एनर्जी यूज करते हैं. Even when we are not doing any apparently activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. It means that we observe that when we sleep, we are just in rest, we are nothing doing, but still we need energy. Energy is needed to maintain state of order in our body. When we do something, then we use energy for the activity. Whatever we do, that is apparent activity, and we use energy for the apparent activity. But when we are in rest, particularly, we just rest. At that time, energy is needed to maintain a state of order in our body. Then we also need material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body. This source of energy and material is of the food we eat. See well, we also need material from the outside in order to grow. If we want to grow, then we need some material. Why? We want to grow, we want to develop ourselves, and we want to synthesize protein. Synthesize means prepare protein or other substances needed in body. हमारे बॉडी में और भी सब्सटेंसेस लगते हैं, और ये सब कहाँ से मिलते हैं? द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट. हम जो खाना खाते हैं वही तो इन सब का क्या होता है? सोर्स होता है. व्हाट वी गेट फ्रॉम फूड, तो हम वी कैन गेट सच थिंग्स फ्रॉम द food, such material from the food. We also get energy from the food. Whatever we eat, we digest it and use up in all these things. Then how do living things get their food? वो हम खाना कैसे लेते हैं? हमारी बात छोड़ दीजिए, लिविंग की बात लीजिए यार. तो हर कोई सेम तरीके से खाना नहीं खाते हैं. देखो, हर्बिवोरस एनिमल ईट ग्रास, कार्निवोरस एनिमल्स ईट हर्बिवोरस एनिमल और समथिंग अदर एनिमल. सैप्रोपोडिक also take food from the dead and decay. Okay, now how do living thing get their food? वो कैसे लेते हैं अपना खाना? तो खाना लेने की भी तरीका होती है. देर आर सम सिस्टम्स डेवलप इन द ऑर्गेनिज्म टू टेक देयर फूड. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म. जो हमारी जो एनर्जी है और मटेरियल है उसकी तो हर किसी को नीड होती है, but it is fulfilled in different ways. But the need of energy and material
In short, the need of food can be fulfilled in different way, not in same way, but different way. The system of digestion or taking of food is different in different type of animals. Some organisms use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. See here, see here, एक मिनट दोस्तों, देखिए, some organism use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. Means there are some organism who take the simply food material obtained from inorganic source. इनऑर्गेनिक सोर्स से वो क्या है, सिंपल मटेरियल चूज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. These organisms are autotrophs. Autotrophs, they are called autotrophs. Then, which organism are called autotrophs? The organism, we can say, simply food material obtained from the inorganic source in such form of carbon dioxide and water. These organisms are called autotrophs. Means autotrophs are the organism which use just simple food material, just as carbon dioxide and water. What are they? They are green plants and some bacteria are the example. What are they? They are green plant. They use only carbon dioxide and water and mineral from the soil. Carbon dioxide from the air and water and mineral from the just soil, and prepare their own food. This is the simple organic substance of for the tree. Okay, and some bacteria also prepare their food in such a process. But what about other organisms? Other organisms utilize complex substances. What type of they use? They utilize complex substances instead of simple food material. Plants and some bacteria use simple food material, but other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simple one before they can be used for the upkeep, the growth of body. देखिए इसमें कैसा है, कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, बाद में उसको ब्रोकन डाउन करते हैं. ब्रोकन डाउन काय में, सिंपल वन, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल वन में ट्रांसफर करते हैं बिफोर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी. बिफोर दे कैन बी यूज फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी अपने यूटिलाइज के पहले कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ट्रांसफर करते हैं. इट मीन्स दैट दे नीड डाइजेशन. ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाते हैं, वो यूज करते हैं, या कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, सीधा यूज करते हैं. बट व्हाट हैपन इन अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? दे टेक कॉम्प्लेक्स फूड and turn into simple food. They turn into simple food before utilizing for the growth of body. Okay, this is the difference. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down in simple one before they can be used for the upkeep and growth of body. To achieve this,
organism use biocatalyst called enzymes. अब ये कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स टू सिंपल? विद द हेल्प ऑफ बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. हम देखते हैं, हमारा एग्जांपल लेते हैं तो हम ग्रेन लेते हैं, राइस लेते हैं, हमारे व्हीट लेते हैं. दीज आर द कॉम्प्लेक्स फूड. वो हम खाते हैं और हम हमारे जो एंजाइम्स है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह है, उसके मदद से हम इसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं. अब जब सिंपल ये हो जाते हैं तो हम हमारी बॉडी यूज करते हैं ये फूड को. तो ऐसा भी होता है, हमारी बॉडी कभी भी सिंपल लेती नहीं है और सिंपल मिक्स करती नहीं है, यूज अप नहीं करती. तो कैसा इसका कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड लेती है, उसको सिंपल बनाती है विद द हेल्प ऑफ बायोकैटालिस्ट. ओके, एंड देन यूज इट. थस द हेटरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स. इसको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप सर्वाइवल. और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ये ऑटोट्रॉप पे डिपेंड होते हैं. हेटरोट्रॉप्स डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स. दे may directly depend on or indirectly depend on. See here, heterotrophic organism include animal and fungi. इसमें कौन कौन होते हैं? एनिमल एंड फंगी होती है, एनिमल एंड फंगी. अब हमने दो टाइप का देखा है न्यूट्रिशन. कौन से दो टाइप का न्यूट्रिशन देखा है? एक तो ऑटोट्रॉप्स जो सिंपल लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं. देखो, सिंपल फॉर्म में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, अपना खाना बना लेते हैं. और एक हमने देखे है कि कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और सिंपल में बाद में कन्वर्ट करते हैं. काय की वजह से? विद द हेल्प ऑफ दी बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. तो ऐसे इस तरह के हमने न्यूट्रिशन देखे हैं, दो टाइप के न्यूट्रिशन. कितने टाइप के न्यूट्रिशन? हमने दो टाइप के देखे हैं. अब इसके बारे में हम सोचेंगे. पहले देखेंगे हम एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे. अब देखो, कार्बन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल बाय फोटोसिंथेसिस. अब देखो, कार्बन है एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल बाय फोटोसिंथेसिस. इट इज ए प्रोसेस by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into store form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to plant. अब देखिए कैसी प्रोसेस है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा है? देखिए, याद दिया है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी. इन्हें ऑटोट्रॉप क्या करता है? आउटसाइड से सब्सटेंस लेता है, कन्वर्ट देम करता है. कैसे? स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऐसा फॉर्म बनाता है उनका कि वो एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे. ऑटोट्रॉप्स हैव ए एबिलिटी टू टेक द सिंपल सब्सटेंस एंड कन्वर्ट देम इन स्टोर फॉर्म. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है,
अब देखिए, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो आउटसाइड के मटेरियल है, कौन कौन से मटेरियल लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। इसको काहे में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वाटर में काहे में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। ये है स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के विद द हेल्प ऑफ दिस टू थिंग्स कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म। हम अदर वर्ड में यही बोल सकते हैं। क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ये कैसा फॉर्म है? इट कैन बी स्टोर्ड इन प्लांट। ये किसके प्रेजेंस में बनता है? ये सनलाइट और क्लोरोफिल वहाँ लगती है। क्या लगती है? सनलाइट और क्लोरोफिल। और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल this carbon and water converted into carbohydrate form and carbohydrate are utilized for providing energy to plants। और यही कार्बोहाइड्रेट प्लांट को क्या देता है? एनर्जी। इट मीन्स दैट बाहर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। और इसके किसके प्रेजेंस में ये होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। ये किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। सॉरी, स्क्रीनशॉट हो गया था इसलिए हमें डिलीट करना है। तो देखिए अब क्या होगा? सनलाइट और क्लोरोफिल के इसमें क्या फॉर्म हो गया है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। और ये कैसा? ये एनर्जी का फॉर्म है विच सप्लाई द एनर्जी टू द प्लांट्स, विच सप्लाई द एनर्जी ऑफ द प्लांट्स। तो ये हम रिएक्शन बाद में देखेंगे ही देखेंगे। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखिए, दिस कार्बोहाइड्रेट, the carbohydrate which are not utilized immediately are stored in the form of starch। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या बनाते हैं? स्टार्च। विच कार्बोहाइड्रेट आर नॉट यूज इमीडिएटली। यदि कार्बोहाइड्रेट यदि यूज नहीं हुआ इमीडिएटली तो उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का क्या बनाते हैं? स्टार्च। which serve as a internal energy reserve to be used as when required by the plant। अब ये स्टार्च क्या काम करता है कि यानी जब भी प्लांट को एनर्जी लगती है तो स्टार्च उसको प्रोवाइड करता है। मतलब स्टार्च से प्लांट को एनर्जी जब चाहे तब मिलती है। इन द फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, एक्सिस कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और स्टार्च का फंक्शन क्या होता है? देखिए, विच सर्व एज ए इंटरनल एनर्जी। ख्याल में देखिए, इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज एंड व्हेन इट रिक्वायर बाय द प्लांट। जब जब प्लांट से वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट आती है तो ये स्टार्च का यूजअप होता है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, एंड ए समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट इन स्टोर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। ए समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस। हमारे इसमें भी ऐसा ही होता है। व्हेन सम ऑफ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड we eat is stored in our body in the form of glycogen। अब प्लांट किस में टर्न करके कन्वर्ट करके स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। हमारे बॉडी में भी
ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में एक्सिस एनर्जी क्या स्टोर होती है। हमारी बॉडी में भी एक्सिस एनर्जी स्टोर होती है, बट कौन से फॉर्म में? ग्लाइकोजन। और प्लांट के इसमें स्टार्च के रूप में वो क्या होती है, ये एनर्जी स्टोर होती है। समझ गई इतना भाग? चलो आगे बढ़ेंगे अब रिएक्शन की और तरफ। देखो ये रिएक्शन की, देखो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है हमने, वाटर ले लिया है, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ये ग्लूकोज बन गया है। क्या बन गया है? ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, और ये वाटर भी या फॉर्म हो रहा है। ये है हमारी फोटोसिंथेसिस की एक्शन। ये हमारी फोटोसिंथेसिस के ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। ओके, तो ये होता है हमारे ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन में। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूजअप होता है सिंपल फॉर्म में, पानी होता है, वाटर होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है और वाटर होता है। अब ऑक्सीजन और वाटर के तो आपको मालूम ही है फार्मूला क्या है, तो सिर्फ आपको यूज जो मालूम करना है तो ग्लूकोज का फार्मूला मालूम कीजिए, C6 या फिर SO आ गया, यानी वाटर का फार्मूला आ गया, सिर्फ आगे 6 लगाना है। देखो ग्लूकोज का हो जाएगा बराबर है C के डबल में है हाइड्रोजन के, और C के इक्वल है ऑक्सीजन के। बहुत ही सिंपल तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं, C6 H12O6। देखो H2 का जो फॉर्म होता है, देखो हाइड्रोजन के 2 होते हैं तो ऑक्सीजन का 1 होता है। यहाँ भी ऑक्सीजन का यानी 6 है तो ऑक्सीजन के डबल हाइड्रोजन के है, और लेकिन कार्बन का जो ज्वाइन हुआ है वह ऑक्सीजन की इतना ही है। ये थोड़ा सोचने की बात है और इससे हमें मदद हो जाएगा, क्योंकि H2 फॉर्म याद दिखता है और या C6 लगी है, तो हमें याद रखना है C6 H12O6 बराबर है। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। बाकी ऑक्सीजन भी मालूम है, हाइड्रोजन भी मालूम है। और बैलेंसिंग के बारे में थोड़ा देख लीजिए, या क्या है तो या का H12 ये 12 लगा दीजिए बराबर है। ऑक्सीजन का 6 है तो यह 6 लगा दीजिए, हमारा बैलेंस हो जाएगा। देखो है कि नहीं, वाटर का 6 मॉलिक्यूल है, यानी देखो हमने देखा है, देखे तो हम ये बोल सकते हैं या 6 मॉलिक्यूल वाटर के है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के भी है बराबर है। और ये 6 हमने कॉमन निकाल ले तो क्या हो जाएगा? CH2 है ना, CH2 हमने 6 लगा दिए तो क्या हो जाएगा? C6H12C6 बराबर है। तो ये हमें 6 बैलेंस हो गई, इधर में 6 और 12 हाँ, बाद में इधर में 6 है कि नहीं। एक टेक्निक से याद रखो आप, CH2O को हम 6 से गुन लिया तो C6 हो जाएंगे, H12 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। तो ये सिंपल तरीका थोड़ा हो सकता है याद रखने के लिए, तो आप उसका यूजअप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने तरीके से रख सकते हो। चलो कोई बात नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? द फॉलोइंग इवेंट्स आकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब क्या क्या होता है हम देखेंगे। एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्या होता है? एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है।
ठीक है। कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्पीटेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का जो H2O मॉलिक्यूल है इसको अलग करता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। यानी ये जो सनलाइट है ये एनर्जी काहे के लिए यूज आती है, टू स्प्लिट अप दी वाटर मॉलिक्यूल। ओके, देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है और फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6। इस तरह का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, ये जरूरी नहीं कि एक के बाद एक ही हो जाए, बराबर है। अब देखिए अगला पार्ट, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। अब देखो ये ऐसी तो आमतौर पे होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये आमतौर पे होती नहीं है रिएक्शन। देखो अब एग्जांपल दिया है हमारे को डेजर्ट प्लांट का। डेजर्ट प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट है टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। अब देखिए वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं डेजर्ट प्लांट, नाइट में, एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी, ठीक है, एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड ड्यूरिंग द डे। और ड्यूरिंग द डे में बाकी क्या है, सब कुछ प्रोसेस चालू हो जाती है उनकी, सब कुछ प्रोसेस उनकी चालू हो जाती है। लेकिन नाइट में कौन सा काम करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करके रख देते हैं, लेके रख देते हैं। यानी इस तरह से थोड़ा फोटोसिंथेसिस में अल्टरनेशन मिल जाएगा। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। हम देखेंगे हर एक कंपोनेंट कैसा यूज है और कैसा काम का है, इसके बारे में यूज करेंगे हम। देखो if you observe the cross section of the leaf under a microscope, you will find that some cell contain green dots। और हमारी जो सेल होती है प्लांट्स की, उसमें कुछ सेल में क्या होते हैं, ग्रीन डॉट्स होते हैं, एंड सेल ऑर्गेनेलीज, और कुछ में सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। देखो कंटेन ग्रीन डॉट, दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। अब ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं ये सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये पार्ट होते हैं सेल के, और उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। लेट अस डू एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हम देखेंगे एक्टिविटी के जरिए, ये आपको एक्टिविटी करना है, ज़्यादा डिटेल मैं नहीं जाऊँगा इसमें, लेकिन वो आपको प्रूव कर देगा कि क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस। चलो हम पहले ये देख लेते हैं थोड़ा। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये लीफ होता है, ये जैसे कि याद दिखा है, ये मिड ड्रिप होती है, और ये लैमिना है, ये लीफ का ब्लेड, और ये वेन्स है। इधर में ये यहाँ दिखाए है झाइलम और फ्लोएम। जो रेड पार्ट दिखाया है वो फ्लोएम का दिखा है, और ग्रीन पार्ट में दिखा है वो झाइलम का दिखा है। इस तरह वास्कुलर बंडल होता है। अब देखो इसमें ये जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, तो हम देखेंगे। देखो ये लीफ जो है, ऊपर का जो पार्ट है वो वैक्सी क्यूटिकल पार्ट है। ये वैक्स पार्ट, ऊपर का पार्ट, बिल्कुल ऊपर का जो पार्ट है, ये जो ऊपर में दिखाया गया है, इसको क्या है, वैक्सी क्यूटिकल पार्ट है। और वैक्सी क्यूटिकल के पार्ट के बाद में ये अपर एपिडर्मिस है, जो कि सेल के रूप में रेक्टेंगुलर हमें दिखाया गया है, बराबर है। और उसके नीचे में
कुछ ऐसी बॉडी होती है जहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सेल ऑर्गेनेलिज होती है और इसमें ही क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल का पार्ट है और बीच में कार्बन डाइऑक्साइड लगता है ना, बराबर है ना। तो ये बीच में गैप है, एयर स्पेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वहाँ ही ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है फोटोसिंथेसिस में। और ये हमारी गार्ड सेल है, ये वाली हमारी गार्ड सेल है। ये गार्ड सेल है, देखो ये दोनों, ये जो सेल है ये गार्ड सेल है, यही अलाउ करती है गैस को आने जाने में, बराबर है। फिर ये लोअर एपिडर्मिस है और यही ऑक्सीलेयर फिर से है ऊपर में, है कि नहीं। ये ऑक्सीलेयर सबको प्रिवेंट करता है, गार्ड सेल सिर्फ उसको अलाउ कर देती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, बराबर। ये अपना ये है प्लांट का लीफ का क्रॉस सेक्शन है। अब थोड़ा एक्टिविटी की तरफ हम जाएंगे, देखेंगे। अब देखो क्या करना है हमें, सिर्फ मैं रीड करूँगा, ज़्यादा कोई डिटेल नहीं जाऊँगा इसमें। टेक ए पॉटेड प्लांट एंड विथ वेरिजिएट लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रॉस। आप मनी प्लांट ले लीजिए। कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल स्टार्स गेट अप यूज। ये जो स्टार्स है ये एनर्जी फॉर्म है यूज का, अनयूज फॉर्म है एनर्जी का, वो पूरा यूज अप हो जाएगा क्योंकि आप उसको डार्क में रख दिए है। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 hours, और 6 hours के लिए उसको हमारी धूप में रख दीजिए। फिर से क्या हो जाएगा, फूड बनना तैयार हो जाएगा। प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट्स, मार्क द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अब क्या है, उसको ये ग्रीन एरिया मार्क करना है आपको और वहाँ ट्रेस करना है पेपर के ऊपर। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए उसको। आफ्टर दिस इमेंस इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, बाद में अल्कोहल किस में डाल दीजिए। केयरफुली प्लेस ए अबाव बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉयल, और अल्कोहल बॉयल होने तक उसको बॉयल करना है। व्हाट हैपन टू कलर ऑफ लीफ, विच इज कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब कलर ऑफ द लीफ निकल जाएगा, बराबर है, टर्न हो जाएगा, बराबर है, ठीक है, वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। नाउ डिप द लीफ इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू सेकंड। अब आयोडीन के सॉल्यूशन में डालना है। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, और हमें आयोडीन सॉल्यूशन से वो निकालना है, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन ए बिगनिंग। और पहला लीफ और दूसरा लीफ सरीका है क्या, नहीं रहेगा। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरिया ऑफ द लीफ। इससे हम पता कर सकते हैं कि स्टार्च जो है वो एनर्जी फॉर्म में स्टोर रहता है, यह हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिटेल अबाउट द गार्ड सेल। ये हमने जो देखी है इसमें ये गार्ड सेल के बारे में हमने देखा था। अब ये डिटेल हम गार्ड सेल के बारे में हम देखेंगे। ये गार्ड सेल कैसी वर्क करती है, क्या होता है ये, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले टेक्स्ट देखेंगे, बाद में हम उसके पहले पिक्चर देख लेंगे। देखिए, तो गार्ड सेल, ये इसको गार्ड सेल बोलते हैं। स्टोमेटल पोर्स है ये, और ये क्लोरोप्लास्ट के जिसमें क्लोरोफिल होता है वो सेल ऑर्गानिलीज है, बराबर, पार्ट्स है सेल के। अब देखो जो ये है वो ओपन है और बी है वो क्लोज है। क्यों होते होंगे ओपन और क्लोज, क्योंकि ये फूल जाने की वजह से ये जो देख रहे हैं ना अंदर का पार्ट, ये कैसा है, जाड़ा है, और इधर का कैसा है, थीन है। ये अंदर का कैसा है, जाड़ा है, और ये कैसा है, थीन है। इसीलिए क्या होता है, ये थीन वाला क्या है, स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन ये जल्दी नहीं होता, तो ऑटोमेटिक ये क्या है, ओपन हो जाती है। जब ये सेल सूखड़ जाती है, जब ये सेल सूखड़ जाती है तो क्या हो जाता है, अगेन वो जो ऊपर का जो स्ट्रेच हुआ पार्ट है वो क्या है, रिलैक्स में हो जाता है,
और रिलैक्स में होने के बाद होने की वजह से वो कैसा स्ट्रेट हो जाता है और हमारी गार्ड सेल और सिकुड़ जाती है। जब ये फूलती है तो क्या होता है, ये आउटर भाग स्ट्रेच होता है, ये होता है लेकिन ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाता क्योंकि वो जाड़ा है, बराबर है, इसीलिए उसका ऐसा शेप बन जाता है। और जब ये सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो क्या हो जाता है, ये दोनों लेयर सरी की बन जाती है और क्लोज हो जाती है। इस तरह से हमारी ये गार्ड सेल काम करती है, देखेंगे। Now let us study how the plant obtain carbon dioxide. In class 9 we have talked about the stomata. हम स्टोमेटा के बारे में पढ़े हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, क्लास 9 पे। विच आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। गार्ड सेल का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देना है और ऑक्सीजन को बाहर फेंकना है, ये इनका काम है गार्ड सेल का, ठीक है। बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स एज वेल। हाँ, आमतौर पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो लीव्स में होती है, बट इन some type of plants also the exchange of gases takes place in stem, roots और लीव्स में हो जाती है। तो देखिए, ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये खाली लीफ से होता नहीं है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें स्टेम से भी हो जाता है, रूट से भी होता है और लीव से भी होता है। यह हमें नोटेबल पॉइंट यहाँ है। सिंस, देखिए, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। और ऐसा ये बात है कि ऐसा कहते हैं कि बहुत सारा पानी की अमाउंट ये स्टोमेटा से निकल जाती है। जब वो प्लांट क्या करता है, हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में पानी क्या है, पानी तैयार हो जाता है ना, पानी मिलता है। इस तरह का पानी भी वहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। ये स्टोमेटा का ये डिसएडवांटेज हम कहेंगे। द प्लांट क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन बात ये उतनी सही है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको लगता है तो ये ओपन हो जाती है। अब जब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगता है तो ये क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। हमने देखा ये गार्ड सेल का क्लोज और ओपन, ये ओपन हो जाती है, ये क्लोज है। ये कब है, जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगता है तभी की पोजीशन है। और ये कब की पोजीशन है, जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है तभी की पोजीशन है। अब देखो, the opening and closing of the pores is function of the guard cell। यानी ओपनिंग करना है, गैस को आने देना है और गैस को जाने देना है, और क्लोज करना, तभी कुछ भी आएगा नहीं और जाएगा नहीं। ऐसा ये फंक्शन क्या है, गार्ड सेल का है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। जब जब पानी वहाँ से जाने लगा फ्लो, तब वो फूल जाती है, क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है, सॉरी, गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इन देम। जब भी पानी उसमें जाता है तो वो क्या, स्वेल हो जाती है और गार्ड सेल ओपन हो जाती है, कॉजिंग स्टोमेटल पोर्स टू ओपन। सिमिलरली पोर्स क्लोजेस इफ गार्ड सेल श्रिंक। मैंने बता दिया है, जब ये जो सेल है ये पानी की वजह से फूलती है, बड़ी हो जाती है, होल बड़ा हो जाता है, बराबर है। क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये जो पोर्शन है येलोइश, ये कैसा है, जाड़ा है, जाड़ लेयर का बना है, और ये क्या है, पतली लेयर का बना है, बराबर। पतली लेयर फूल जाता है, जाड़ा लेयर फूलता नहीं है।
और इसीलिए ये प्रेशर बन जाता है और ये ओपनिंग तैयार हो जाती है जब इसमें वाटर आ जाता है। लेकिन जब ये श्रिंक हो जाती है तो ये दोनों लेयर देखो क्या हो जाता है, ये जाड़ा लेयर भी श्रिंक हो जाता है, विदाउट टेंशन रहता है, और ये भी रिलैक्स हो जाता है। ये दोनों लेयर क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग ये होती है गार्ड सेल में। ठीक है, तो एक एक्टिविटी थोड़ी एक्सपेरिमेंट सेटअप विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है देखेंगे हम। ये एक्टिविटी में थोड़ा हल्के से हम देंगे, रिमार्क करते जाएंगे। टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली सेम साइज। ऐसे पॉट लीजिए जो कि सेम साइज के हो, बराबर। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days, और 3 दिन के लिए इनको डार्क रूम में रख देना है ताकि वहाँ का जो स्टार्च वगैरह हो जाए है वो यूजअप हो जाए। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन ए सेपरेट ग्लास प्लेट। Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of the one of the plants, and potassium hydroxide is used to absorb the carbon dioxide. अब इधर में देखो वाच ग्लास है ये, इसमें क्या किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है, बराबर है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। पोटेशियम ये पूरा जार है, कवर है ना, बराबर है ना, कवर है इनको, ये सब क्या है, कवर हो गया है। अब देखो एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया और दूसरे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये नोटेबल है। देखो इनका क्या हुआ है, देखो कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। नाउ प्लेस ईच प्लांट इन ए सेपरेट ग्लास प्लेट। Place a watch glass containing potassium hydroxide by side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb the carbon dioxide. मतलब इन शॉर्ट में इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इसको पहले को ये को मिल रहा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने यूजअप किया है, सिंपल वर्ड में। अब क्या होगा देखिए, कवर बोथ प्लांट्स विथ सेपरेट बेल जार एज शोन इन फिगर। ये कांच तक रख दिया, लाइट तो मिल रहा है लेकिन इधर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। बी को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है और क्या है, लाइट भी मिल रहा है। यूज द वैसलीन टू सील द बॉटम जार टू गैस प्लेट सो दैट द सेटअप इन एयर टाइट। अब इसको ये भी एयर टाइट हो गई, अभी ये भी एयर टाइट हो गई, लेकिन इसमें CO2 है, इसमें CO2 नहीं है, ख्याल में रखिए। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours, और 2 घंटे के लिए दोनों को सनलाइट में रख दो, मतलब दोनों को सनलाइट दे दो। प्लग द लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन अबाव एक्टिविटी। अब स्टार्च किस में बन गया होगा, क्योंकि स्टार्च को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला क्या, नहीं मिला, इसको मिला है। सनलाइट इसको मिला क्या, मिला है। वाटर इसको मिला क्या, मिला है। इसको भी वाटर मिला है। अब वाटर मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला नहीं है, तो इसमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बना होगा क्या, नहीं, और इसमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बना होगा, बराबर है। अब देखो, डू दी बोथ ल्यूज शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च रहेगा क्या, नहीं रहेगा, इसमें कम रहेगा, इसमें कम रहेगा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी। इससे क्या पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टार्च बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इधर में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, इधर में फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। देखो बाद में, बेस्ड ऑन टू एक्टिविटी परफॉर्म अबाउ वी कैन डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होता है। सो फार
वी हैव टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मेड देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब हमें पता चला कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, ये हमें पता चला। बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। अब बॉडी बिल्डिंग करने के लिए इतना ही नहीं तो और कुछ मटेरियल लगते हैं उनको, जैसा वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब जो वाटर लगता है वो कहाँ से लेके जाते हैं ये लोग? सॉइल, बाय द सॉइल थ्रू द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल सब प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में उनके रूट्स से पानी जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन लगता है, फॉस्फोरस लगता है, आयरन लगता है, मैग्नीशियम लगता है, आर टेकन अप फ्रॉम दी सॉइल। ये सब मटेरियल है, ये सॉइल से मिलते। कौन कौन से मिलते पेड़ को? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, इनकी भी ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन इज इसेंशियल एलिमेंट यूज इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। अब देखिए, अब प्लांट को CO2 प्लस वाटर के अलावा और कौन कौन से पदार्थों की ज़रूरत होती है हमें देखना है, जैसा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, इनकी ज़रूरत होती है प्लांट्स को। ये कहाँ से लेते हैं? सॉइल से, सॉइल से लेते हैं। हमारे प्लांट्स नाइट्रोजन डायरेक्ट यूजअप नहीं करते एटमॉस्फेयर का, वो नाइट्रोजन कंपाउंड में तैयार हुआ नाइट्रोजन यूज करते हैं। नाइट्रोजन इज इसेंशियल एलिमेंट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन क्या यूज है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और अदर कंपाउंड। देखो, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। ये भी कौन से फॉर्म में मैंने बताया आपको, कंपाउंड फॉर्म में लेता है तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में या नाइट्रेट्स में फॉर्म में लेते हैं, और इट इज़ टेकन अप एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ हम देखते हैं कि जो नोडुल्स रहते पेड़ के रूट के ऊपर, तो वहाँ जो नाइट्रोजन है फिक्स हुआ रहता है बैक्टीरिया से, वो नाइट्रोजन लेते हैं। तो इस तरह का ये न्यूट्रिशन है हमारा एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, हम देखा है।